Hello friends, today we are going to talk about how to improve your score in mocks, because eventually that will lead to you getting a better percentile in the actual exam. Now your score in mock, the scores that you are getting right now, is maybe not an indicator of how good you are or how bad you are, depending on whether you are getting very high or very less, a very high percentile or a very low percentile. So when you say improving scores in mocks, please remember the current score that you are getting in your mock, okay, is a product of three things. The first and foremost obviously is your knowledge. How good are you in the various subjects? मैथ्स और LRDI में आपको क्या क्या मालूम है, आपने क्या क्या प्रैक्टिस किया है, आपने लैंग्वेज में क्या क्या प्रैक्टिस किया है, आपने वोकैबुलरी में क्या क्या रटा है, ग्रामर में क्या क्या पढ़ा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दिस इज द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग इज स्ट्रेटेजी. What kind of a strategy are you using to solve the mock? Okay, I mean, as far as the mock CATs are concerned and as far as the actual CAT is concerned, you don't have much of a choice, because you have to start with English, move on to LRDI and finally go on to QA. So there is not much of a choice there. But within this section, within VARC section, what is the strategy that you are following? Within the LRDI section, what is the strategy you are following? Within QA, what is the strategy you are following? So all these things definitely make a huge impact on your scores in mocks. And the third thing which students usually miss out, analysis of the previous mocks. Suppose you have appeared for mock 1 and you then appear for mock 2 without analyzing mock 1. In my opinion, you have wasted both the mocks. Right? Nobody expects you to score a very good percentile in the first mock right away. Nobody expects you to get a very good score in the percentile in the first mock right away. Okay? But if you have not used that mock, if you have not analyzed that mock test to improve your score, then you have wasted both the mocks. Remember, because taking the second mock is just a waste of time. You are just doing a formality, nothing else. So out of this is out of the domain of our discussion today. Okay, because knowledge या आपकी competence जो है वो depend करता है कि आप क्या क्या practice कर रहे हो, आपकी classes क्या क्या चल रही हैं और आप खुद पढ़ रहे हो या जो भी है. तो it's a lot of factors. But strategy and analysis of the previous mock can have a huge impact on your score, and that is what we are going to talk about today. But before we start, let's talk about one very simple thing. Generally हम सोचते हैं that competence, right, is directly proportional to scores. Okay, मतलब usually what students tend to think when they appear for CAT is, if the competence increases, the increase in scores would be automatic. If the competence increases, the increase in score would be automatic. Nothing can be farther from the truth, because this relation is not correct. This relation is only partially correct. Okay, competence and these two things together with it translates into a higher score. Okay, so step 1, when you talk about CAT exams, step 1, CAT or any other MBA entrance exam, the first step is to improve competence. But just because you know more about maths, or just because you know more about LRDI, or you know more about English, that does not necessarily mean you'll get a better percentile. Remember, there is always a gap. And many of you roughly would be frustrated कि हम पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है. ये फ्रस्ट्रेशन कैट में आना बहुत नॉर्मल है. We'll also tell you today how to deal with that frustration. So first thing, remember, just because you have improved your competence, that does not mean you will get a better score. No sir. Your competence combined with strategy and the proper structure of analysis
and practice and practice and practice will lead you to a better score, right? I hope this point is clear. So now let us see what kind of a strategy you need to adapt. Section by section देखते हैं हम. Now when you go for CAT, the first section that you are going to solve obviously is VARC. This is the first section you are going to solve, okay? And question numbers 1 to 24 would be reading comprehension. ये CAT का स्टैंडर्ड पैटर्न है पिछले 5-6 साल से. Questions 1 to 24 will be reading comprehension, okay? Now remember, on the day of CAT, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप आराम से बिना टेंशन लिए घूमते घूमते जाएंगे, कैट देंगे, बढ़िया चिल करेंगे और फिर वापस आएंगे, तो आपको बहुत गलत लग रहा है. रिमेंबर, बिकॉज दैट डे, राइट, ऑन द डे ऑफ द कैट, द टेंशन एंड द प्रेशर विल बी एट अ मैक्सिमम लेवल, राइट? तो आप ऐसा सोचना ही नहीं कि कैट के दिन मेरे को टेंशन नहीं आना चाहिए. यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. आपको ऐसा सोचना है कि कैट के दिन टेंशन बहुत रहेगा, उसको मैनेज कैसी करूं. देन यू आर फाइटिंग द करेक्ट बैटल. इफ यू आर थिंकिंग कि कैट के दिन आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, तो आप जंगी गलत लड़ रहे हो, ऐसा होने ही नहीं वाला. ओके, सो रिमेंबर, सो विद दैट इन माइंड यू गो इन फॉर योर कैट. आपका वो 1 घंटे का सब कुछ तमाशा होता है और आप मॉक बिट जब देते हो, पहला सेक्शन VARC होता है. अब एक चीज याद रखिए, ये ग्राफ आपको हमेशा याद रखना है. यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ. व्हाट इज दिस ग्राफ? लेट अस से दिस इज टाइम इन मिनट्स एंड दिस इज LOC. लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो सपोज ये ग्राफ है. अब उसमें देखिए, ये थोड़ा सा टू स्केल नहीं है, मैं थोड़ा सा टू स्केल बना देता हूं इसको. ओके, आइडियली क्या होना चाहिए टेस्ट में? कंसंट्रेशन लेवल विथ रिस्पेक्ट टू 180 मिनट्स. आइडियली ये ऐसा होना चाहिए, बराबर है. फॉर द एंटायर 180 मिनट्स यू आर एट अ पीक कॉन्सेंट्रेशन लेवल. आइडियली ये होना चाहिए. ये नहीं होता है, ये अनरियलिस्टिक है. ये अनरियलिस्टिक है. होगा क्या? होगा ये, या फिर लेटर से होगा ये. बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक मैंने रहना नहीं चाहिए, राइट? बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट अपियरिंग फॉर एनी मॉक टेस्ट, राइट, इनिशियली वो नर्वसनेस, वो बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, राइट? कुछ लोगों को पसीना आ रहा है, कुछ लोगों को नॉशिएटिंग लग रहा है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, ये सब नेचुरल है, राइट? तो रिमेंबर, ये स्टेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना इज सुसाइड. ओके, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है? यू नीड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 5 to 7 minutes in reading before you give yourself the chance to attempt even one question. करेक्ट? आपको पैसेज पढ़ने के लिए 5-7 मिनट लगने वाले हैं पीक कॉन्सेंट्रेशन पे. वो पीक कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में नहीं आने वाला है. मुश्किल नहीं, नामुमकिन बोल रहा हूं. वो पीक कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में नहीं आने वाला है. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, इन दिस फेज, ये जो फेज है, in this phase you start with non-RC MCQ questions in CAT. वो जो समरी एसेंस वाले 2-3 क्वेश्चन होते हैं, या फिर वो ऑड सेंटेंस वाले 2-3, non-RC MCQ बोल रहा हूं मैं, पैरा फॉर्मेशन नहीं बोल रहा हूं. ठीक है? तो दिस हैज टू बी डन फॉर द फर्स्ट 5 to 7 minutes. पहले 5 से 7 मिनट आपको ये करना है, राइट? तो पहले 5 से 7 मिनट में फायदा ये होगा कि 2-3 अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके, राइट? थोड़ा सा वो जिटरीनेस, थोड़ा वो नर्वसनेस थोड़ा सा
रिलैक्स हो जाएंगे आप, यू विल गेट इनटू द ग्रूव एंड देन यू स्टार्ट विथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. दैट इज द आइडिया. ओके, तो VARC अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है. यू स्टार्ट विथ नॉन RC MCQ क्वेश्चंस, देन you go to reading comprehension questions, right, and then you go to the non-RC non-MCQ questions, maybe 5 to 7 minutes here. ठीक है, आपके पास टोटल 60 मिनट्स है, राइट. 5 to 7 minutes here, maybe 45 minutes here, and maybe 10 minutes here. Right, this is the best way to solve your VARC section in CAT. This is the best way to solve your VARC section in CAT. I hope the idea, the strategy is very clear to you. Okay, इससे फायदा ये होगा कि इनिशियली आपके कुछ अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो ये रहेगा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBM. ओके, एंड बिकॉज रिमेंबर द वर्स्ट थिंग इज 10 मिनट हो गए, आपका एक भी ऑप्शन मार्क नहीं हुआ है. इट्स अ हॉरिबल फीलिंग टू हैव. इट्स अ हॉरिबल फीलिंग टू हैव. इसलिए सवाल ये नहीं है कि ये सही है या गलत है. सवाल ये है, मसला ये है कि आपके 5 मिनट में 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, एंड यू विल डू RC इन द प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड. यू विल डू RC इन द प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड. दैट्स द आइडिया. तो याद रखिएगा, दिस इज द स्ट्रैटेजी विच विल गेट यू अ मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इन VARC. ओके, अब विद इन RC इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मसला उठता है, एंड द इश्यू इज क्वेश्चंस फर्स्ट और पैसेज फर्स्ट. पहले क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए या पहले पैसेज पढ़ना चाहिए. नाउ आई हैव बीन ट्रेनिंग CAT स्टूडेंट्स फॉर 21 years नाउ. आई स्टार्टेड इन CAT 2000. तब तो CAT का फॉर्मेट बहुत ही अलग था. सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, यूजुअल सजेशन, majority of the suggestions, majority of the people, trainers would say you always read the passage first, right? I agree with that suggestion wholeheartedly, but there are limitations to that strategy. Remember, reading the passage first works if your reading speed is very good. We'll talk about reading speed also. What is the expectation? Reading the passage first is a good strategy if your reading speed is good. अगर आपको पैसेज पढ़ने के लिए 8 क्वेश्चन लग रहे हैं, अगर आपको पैसेज पढ़ने के लिए ही 8 मिनट लग रहे हैं, सॉरी, इसका मतलब पहले क्वेश्चन पे आप पहुंचे एंड यू हैव फॉरगॉटन व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पैसेज. दैट्स व्हाट इट मींस. सो रीड द पैसेज फर्स्ट स्ट्रेटजी वर्क्स इफ योर रीडिंग स्पीड इज वेरी गुड. अदरवाइज रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट हेल्प्स. सेकेंडली, रीडिंग द पैसेज फर्स्ट हेल्प्स if you are comfortable with the content of the passage. Otherwise, reading the questions. Reading the passage first helps if the questions are indirect, like in CAT. But if the questions are very direct and factual, like in IIFT, then reading the questions first works better. Okay, so it's your call. I have told you the 3 parameters that are there to decide whether you should read the questions first or the passage first. So now you'll have to take the call depending on how you are. Okay, then so since let's talk a bit 2 more things about English here, 2 more things that we need to have about VARC. Okay, now if you want to give yourself a chance of going through all the 34 questions in VARC and attempting as many as possible, okay, roughly you will need a reading speed of you'll need roughly a reading speed of 400 words per minute, right? अगर आपकी रीडिंग स्पीड इतनी नहीं है
अगर आपकी रीडिंग स्पीड इतनी नहीं है तो आप शायद 34 क्वेश्चंस देखकर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. Okay, this is the one thing that you need to remember. So you need to get up to that reading speed as fast as possible. With a reading speed of 400 words per minute, I am not saying that you'll get all right. What I am saying is, or solve everything. No. What I am saying is, if you have a reading speed of 400 words per minute, then you will be able to go through all the 34 questions and solve as much of it as you can. Okay, so you need to have the competence that you are at 400 words per minute. You need to have that competence that you are at 400 words per minute. Okay, so this is the first thing, that one more thing that I wanted to talk about, your reading speed in CAT. Okay, second thing, आपने ये सुना होगा कि कैट में जीके चेक नहीं करते, ये आपने सुना होगा. अनफॉर्चुनेटली माय ओपिनियन इज दैट पीपल हु से कैट डज नॉट चेक जीके हैव नॉट अंडरस्टूड कैट. द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आर ऑल अबाउट फेमिलियरिटी. तो दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, फेमिलियरिटी लीड्स टू अ स्कोर. आई विल से अ गुड स्कोर. पुरानी कहावत यह है कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. I would disagree. Familiarity with the content of the RC passages gives you a better chance of scoring well. ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है, राइट? तो कैट में पैसेजेस क्या आते हैं? कुछ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आ जाएगा, एक फिलोसॉफी आ जाएगा, एक शायद कोई आर्यन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर आ जाएगा, एक अभी तो शायद कोविड पे आएगा या ब्रेक्सिट पे आएगा या यूएस चाइना ट्रेड वॉर पे आएगा, चाइनाज एक्सपेंशनिज्म पे आएगा. डेंग जियाओपिंग आपको नाम ही नहीं मालूम है, पैसेज में 10 बार दिया हुआ है, क्या कर लेंगे आप? हाँ, तो जो बोलते हैं कि कैट जीके चेक नहीं करता, वो लोग कैट को समझे नहीं है. कैट डायरेक्टली तो कुछ भी चेक नहीं करता. वैसे तो कैट वोकैबुलरी भी चेक नहीं करता. क्या इसका मतलब कैट के लिए आपको वोकैबुलरी नहीं चाहिए? हाँ, तो अल्टीमेटली दिस अराइजेस फ्रॉम अवेयरनेस. ठीक है, एनीवे, so that's how you tackle the VARC section of CAT. Remember the order that we had discussed. First 5 to 7 minutes you solve the non-RC MCQ category, right? Next 40 to 45 minutes you solve RC, and in the last, if you have some time left, then you solve the para formation questions. That is the ideal thing, because para formation में hit rate बहुत कम होता है. One incentive to solve para formation is that because it's non-MCQ, there is no negative marking. Go ahead if you want to take that advantage. And if you are really good at para formation, आपके हमेशा सही होते हैं, तो maybe instead of starting with non-RC MCQ, you can start with non-RC non-MCQ. That's completely up to you. But para formation में समय बहुत लगता है, इसीलिए even if you are good at para formation, I'd ask you to stick to that strategy. This is how you maximize those 60 minutes that you give to the VARC section. Okay. अब एक और चीज, अब मैं VARC 20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं. एक चीज ध्यान रखिए आप, नेवर चेंज योर आंसर. कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. आरसी में नहीं करना है. नेवर चेंज योर आंसर. नहीं तो क्या होता है, स्टूडेंट्स यूजुअली दे रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, दे आर कंफ्यूज विथ ऑप्शंस 2 and 3. उनको ऑप्शन 2 थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली लग रहा है, ऑप्शन 2 मार्क करते हैं सोच के, ज्यादा सोच के ऑप्शन 3 मार्क करते हैं, और फिर देखते हैं कि आंसर ऑप्शन 2 ही था. तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए. एक बार आपने आंसर मार्क कर दिया, बात खत्म हो गई. नाउ यू डोंट नीड टू. अब आरसी में चेक कैसे करेंगे आप आंसर? कोई फॉर्मूला लगाया क्या आपने? नहीं. कोई मेथड फॉलो किया? नहीं. कोई स्टेप्स फॉलो किए? नहीं. तो चेक क्या करोगे आंसर? आरसी में चेक करना क्या होता है? कुछ नहीं होता है. तो वंस यू हैव मार्क्ड योर आंसर, इट इज ओवर. नेवर एवर चेंज द आंसर. This is the cardinal rule when you talk about performing well in the VARC section. Okay.
तो VARC के विद इन ये स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए। व्हाट अबाउट LRDI? अब ये तो पूरा प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। आजकल तो ऑनलाइन कैट में तो ऑनलाइन कैलकुलेटर भी होता है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर सॉरी, तो वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, हालांकि बहुत केसेस में जरूरत नहीं है। आई अपीयर्ड फॉर कैट अ कपल ऑफ टाइम्स व्हेन द ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर वाज देयर, आई फाउंड माई सेल्फ मोर कंफर्टेबल डूइंग इट मैन्युअली, राइट। LRDI में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी? सबसे पहले आप जब प्रिपेयर करते हो तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। नहीं तो स्टूडेंट्स में एक आदत है, इसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। दे डू अ लॉट ऑफ LR, दे प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ LR, लेकिन DI को वो लोग बहुत प्रेफरेंस नहीं देते। बहुत गलत स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पूरे कैट में अगर कोई सेक्शन है जिसको अनसॉल्वेबल बना सकते हैं तो वो है LR। इसको एक्चुअली अनसॉल्वेबल बनाया जा सकता है। अभी तो ठीक है, LR थोड़ा सा आसान आता है कंपेयर टू LR विच वाज आस्क्ड इन द पेपर बेस्ड एग्जाम, बट स्टिल। दूसरा, जो लोग ऐसा करते हैं इनको IFT में जाके झटका लगता है, क्योंकि कभी कभी IFT में LR का सेक्शन ही अलग होता है, DI का सेक्शन ही अलग होता है, दोनों के कट ऑफ अलग से क्लियर करने हैं, ठीक है। तो ये जो भेदभाव आप करते हो ना, इसका कारण है LR सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजिक दिमाग लगता है, ठीक है। DI सॉल्व करने के लिए ऑपरेशनल दिमाग लगता है, और स्ट्रेटेजी हमेशा ग्लैमरस चीज है। ऑपरेशनल इज हमेशा द डर्टी थिंग दैट यू नीड टू डू। इसको जैसा हम बोलते हैं, क्लर्कगिरी बहुत है इन DI, राइट। इन LR मैनेजरगिरी बहुत है। LR इज टोटल मैनेजरगिरी एक्चुअली, एंड DI इज क्लर्कगिरी। काफी लोगों को यह पसंद नहीं होता है, इसलिए DI पे ध्यान नहीं देते। यह सबसे बड़ी गलती है जो आप LRDI सेक्शन में कर सकते हो, सबसे बड़ी गलती। आपको दोनों तरफ इक्वल ध्यान देना है, यह पहली चीज प्रिपरेशन में। स्ट्रेटेजी के वक्त एक बहुत ही सिंपल चीज, 2-3 चीजें हैं वैसे। सबसे पहले क्या होता है, सेट दे के सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, ऐसा नहीं करना है। वॉट यू नीड टू डू इज स्पेंड 2 मिनट्स एनालाइजिंग द डेटा। जो डेटा आपको दिया है उसको एनालाइज कीजिए, थोड़ी देर पढ़िए, समझ रहा है क्या, लिंक्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल आप DI सॉल्व कर रहे हो, आपको एक टेबल दिया है, एक पाई चार्ट दिया है और एक बार ग्राफ दिया है, राइट। You need to spend 2 minutes trying to figure out how they are related to each other, right? In the first 2 minutes, if you are able to understand the information that has been given, right, you are able to correlate everything, then you should go ahead and solve the set. Because remember, LRDI में बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है that once you pick up a set, it becomes very difficult to leave it. और ऐसे बहुत केसेस है where people have been stuck with the wrong set for 15 minutes and have not been able to attempt a single question. ऐसे बहुत केसेस हुए हैं, तो you should not do that. और ये तब होते हैं जब आप सीधा क्वेश्चन में भिड़ते हो, फिर उसके बाद डेटा देखते हो। ऐसा कभी नहीं करना, पहले डेटा, 2 मिनट आप डेटा को एनालाइज कीजिए। अगर आप माइंड में फिगर आउट कर पा रहे हो कि ये इस तरह से ये सब चल रहा है, these are the relations between the various elements of the data, then you are ready to solve that particular test. Otherwise, no sir, you are not ready to solve it. Have you understood this? So, spend 2 minutes analyzing the data. ये बहुत जरूरी है, ठीक है। Second, avoid too many calculations. Remember, आपका मेंटल मैथ्स अच्छा होना चाहिए। तरीके बहुत हैं मेंटल मैथ्स के, मतलब फास्ट कैलकुलेशन के तरीके बहुत हैं। वो फॉर्मूले तो खैर आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल 31.33333333% ऑफ 900, बहुत आसान है निकालना। क्या बोला मैंने?
31.333333% ऑफ 900 कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे आप? सीधी बात है, ये आया 10, एक जीरो हटाओ, 10% होते ना भाई साहब, ये आ गया 10, ये आ गया 30, ये मेंटली चल रहा है, ठीक है। 2 जीरो हटाओ, आ गया 1, 2 जीरो हटाओ, आ गया 1, ठीक है। 1%, तो ये आ गया 1%, 1% का 1/3 इज 0.33%, सिंपल, ये आ गया 1.33%, तो ये हो गया 282। कौन सी बड़ी बात हो गई? ये मेंटली चल रहा है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड मेंटल कैलकुलेशन, ये आपका स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक है। एनीवे, एज फार एज टेस्ट टेकिंग इज कंसर्न, दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड द ओनली प्रिकॉशन दैट यू नीड टू टेक इन LRDI। पहले इंफॉर्मेशन एनालाइज कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि ये सब समझ में आया तो आप आगे जाके उसको सॉल्व कीजिए, राइट। व्हाट अबाउट QA? QA के बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, बट QA के बारे में it's always a good idea to solve the question in at least 2 rounds. Remember, आपके पास 60 minutes हैं, at least 2 rounds. कैसे? Round 1, you solve questions which can be solved directly from the options. ये पहला राउंड। इससे क्या होगा, आप पूरे क्वेश्चंस भी देख लेंगे, उसमें से कुछ सॉल्व भी हो जाएंगे। लेकिन रिमेंबर, अगर आपको क्वेश्चंस ऑप्शन से डायरेक्टली सॉल्व करना है तो प्रैक्टिस लगती है। In the first round, you solve questions which are solvable directly from the options, because these are the questions which are considered to be very easy. Okay? जहां आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, assume option 1 is the answer, और देखिए क्वेश्चन कंसिस्टेंट है क्या, नहीं, assume option 2 and so on. Okay? तो कई सारे क्वेश्चन से, स्पेशली हम जिस चीज को हम अरिथमेटिक कहते हैं, राइट, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो आप ऑप्शन से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो राउंड 1 सॉल्व डायरेक्टली फ्रॉम द ऑप्शंस, ठीक है। सेकेंड राउंड में सॉल्व द क्वेश्चंस यू आर कंफर्टेबल विथ। मतलब जैसा परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत प्रैक्टिस किया है, ठीक है, तो ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो सेकेंड राउंड में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन छोड़ दीजिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा कर लीजिए। इनफैक्ट लेकिन अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने अच्छे से किया है तो प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी ही आपकी। अगर आपका वीक पॉइंट है नंबर सिस्टम्स या फंक्शंस, तो सेकेंड राउंड में फंक्शंस के क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ये 2 राउंड करते करते आपको 45 मिनट हो जाएंगे, ओके, बिकॉज दिस शुड टेक यू रफली 20 मिनट्स। और हमेशा हर मॉक टेस्ट में और हर एग्जाम में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस होते ही हैं जो सीधा ऑप्शन से सॉल्व होंगे, ठीक है। ये कैसे समझेगा आपको, अगर आपने पिछला टेस्ट एनालाइज किया होगा तो उस पर हम आएंगे आफ्टर दिस इज डन, ओके। सो पहले ये 20 मिनट में आपके 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। उसके बाद ये राउंड अगर आप चलाएंगे आधा घंटा, ठीक है, तो इसमें आपके और 8-10 सॉल्व हो जाने चाहिए। 20 अटेम्प्ट आपके हो चुके हैं, अब 10 मिनट बचे हैं। तो जो टॉपिक्स आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, वैसे तो ऐसा एक भी टॉपिक होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं इवन व्हेन यू प्रिपेयर वेल फॉर देम देयर इज ऑलवेज अ सॉर्ट ऑफ हेजिटेंसी इन सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस, तो वो आखिरी 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। इससे क्या होगा, आप पूरे क्वेश्चंस देख भी रहे हो,
राइट, पढ़ भी रहे हो और काफी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व भी कर ले रहे हो। नहीं तो काफी बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 से सॉल्व करते हैं और सिक्वेंशियली 60 मिनट्स हो जाते हैं, क्वेश्चन 20 के आगे, क्वेश्चन 25 के आगे पहुंच ही नहीं पाते हैं, सारे आसान क्वेश्चन पता चला बाद में है। तो ये अवॉइड करना है आपको, राइट। तो आप जब क्यूए की बात करते हैं, दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट यू नीड टू फॉलो। Okay, so now we have discussed the strategy aspect of improving scores in mocks. Now let's go to the analysis part. How do you analyze a mock? Again, we'll talk about, इसमें तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, स्ट्रैटेजी में ही ज़्यादा समय लगता है। LRDI क्वांट एक तरफ, VARC एक तरफ। तो LRDI से शुरू करते हैं। In QA, how do you analyze? The first, what do you mean by analyzing mocks? The first thing in QA, after the test is over, solve every question. पहला स्टेप, सॉल्व एवरी क्वेश्चन, पूरे 34 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कीजिए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप एनालाइज ही कर रहे हो, राइट, आराम से कीजिए। Step 2, in 50% of the questions, आधे क्वेश्चंस में मेनली अरिथमेटिक, उल्टा सोच के देखिए। अब आपने हर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, चेक कर लिया, अब आपको पता है कि सही आंसर क्या है, ठीक है। तो अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस है, वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो, राइट, लीनियर रेसेस, सर्कुलर रेसेस, ये सब चीजों में आंसर आपको पता है। अब वो आंसर अज्यूम कीजिए। अब सेकेंड राउंड सॉल्विंग कैसा, जैसा आपको पता है इसका आंसर है 50 मीटर्स, ऑप्शन बी। अब आप वापस सॉल्व कीजिए, अज्यूम कीजिए 50 मीटर आंसर है, तो इज द क्वेश्चन कंसिस्टेंट? ठीक है, आपका जो आंसर आया, अब उसको आप ऑप्शन डालिए, ठीक है, ऑप्शन में होगा ही। अब वर्किंग बैकवर्ड्स कीजिए, समझ में आ रही है बात कि ये आंसर है तो क्वेश्चन कैसा है, और उसके बाद ए में लिखा होगा 40 मीटर। अगर मैं इसको आंसर पकड़ता हूं तो क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हो रही है। इसके लिए समय बहुत लगता है, इसलिए मैंने बोला डू दिस इन ओनली 50% ऑफ द क्वेश्चंस। यू नो द आंसर, अज्यूम द अदर ऑप्शन एज द आंसर एंड सी कि क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हो रही है। इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने जो पिछले इसमें पहला पॉइंट बोला था वर्किंग फ्रॉम ऑप्शंस, वो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, राइट। तो दिस इज हाउ यू एनालाइज QA। तीसरी चीज, इफ अनेबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, if you are unable to solve a question, ठीक है, go to the theory। तो अब ये स्टेज पे रिमेंबर, आपको थियरी तभी पढ़नी है जब आपको क्वेश्चन नहीं जमा। बिना थियरी के, बिना फॉर्मूला के आपको क्वेश्चन जम रहा है तो थियरी पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, ओके। आपको जमा नहीं, आपने एनालिसिस देखा, एनालिसिस में समझ में नहीं आया तो थियरी में जाना। मेरे हिसाब से तो एनालिसिस भी अगर आपको समझ गया कि कैसे सॉल्व हुआ है, मतलब आपको थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू रिसोर्ट टू द थियरी ओनली व्हेन यू आर अनेबल टू सॉल्व द एनालिसिस, राइट। तो ये है हाउ डू यू एनालाइज QA। LRDI में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा आपको। LRDI बहुत मेहनत का काम है। LRDI में बस एक ही चीज, जो कॉमन चीजें हैं QA और LRDI दोनों में, बहुत इंपॉर्टेंट, गेट योर डाउट्स रिजॉल्व्ड, गेट योर डाउट्स रिजॉल्व्ड। काफी स्टूडेंट्स घबराते हैं डाउट पूछने से, तो ऐसा घबरा के तो काम होगा नहीं।
आगे आपको 15 लाख की पगार चाहिए, घबरा के तो मिलेगी नहीं, सालाना, मंथली नहीं, उसके लिए और समय लगेगा। तो गेट योर डाउट्स क्लियर्ड। मॉक 2 देने के पहले मॉक 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो। मॉक 2 देने के पहले मॉक 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए जो आपको नहीं आता हो। आपको इस लेवल का एनालिसिस करना है, LRDI और QA का, राइट। VARC का एनालिसिस कैसे करेंगे? ओके, मैं सिर्फ RC बता रहा हूं, VA तो VA है, उसका कोई एनालिसिस होता नहीं है, वो तो रट्टा मारो बस हो जाता है। RC सबसे पहले आपको ये देखना है जितने पैसेजेस थे टेस्ट में, 5 या 6 डिपेंडिंग ऑन किस तरह का स्ट्रक्चर है, जितने पैसेजेस थे, डू द पैसेजेस कंटेन द नेम ऑफ सम पर्सन अबाउट whom you know nothing? Does the passage talk about some idea which you have heard for the first time? For example, आप पैसेज पढ़ रहे हो और सडनली पैसेज में एक कॉन्सेप्ट आया, एसेंस एंड एग्जिस्टेंस। मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, एसेंस एंड एग्जिस्टेंस। सडनली पैसेज में एक क्वेश्चन आया, एक पैसेज है जिसमें इसके ऊपर डिबेट है और आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो एनालिसिस में ये नहीं करना है आपको कि आरसी में सही क्यों हुआ, कौन सा हुआ, गलत क्यों हुआ, कौन सा हुआ, नहीं। आरसी में ये पैसेजेस में जो कंटेंट है जिसके साथ आप फेमिलियर नहीं हो, यू हैव टू डू मोर रीडिंग ऑन दैट। तो एसेंस एंड एग्जिस्टेंस आप गूगल में टाइप कर लीजिए, 2-3 आर्टिकल पढ़ लीजिए। तो सबसे पहला आरसी में व्हेन यू एनालाइज, रिसर्च and read up on all content that is unfamiliar। आरसी में झगड़ा शुरू हो जाता है, नहीं एनालिसिस गलत है, ऑप्शन 3 होना चाहिए, ऑप्शन 2 कैसे हो सकता। अरे वो सब नहीं करना है आरसी के एनालिसिस में, वो सेकेंडरी है। सबसे पहले रिसर्च एंड रीड अप ऑन ऑल कंटेंट दैट इज अनफेमिलियर। ओके, सेकेंड, आइडेंटिफाई द टफ वर्ड्स, दैट मीन्स द वर्ड्स टू विच यू डिड नॉट नो द मीनिंग। आरसी में सडनली वर्ड आ गया, वॉचिंग 1917 गिव्स द व्यूअर अ विसेरल एक्सपीरियंस। विसेरल आपको पता ही नहीं क्या है। It was just a romantic phantasmagoria. I don't know why that movie was so hyped. Phantasmagoria क्या है आपको पता ही नहीं। मतलब सेकेंड राउंड में जो वर्ड्स हैं, पैसेज, क्वेश्चंस, ऑप्शंस, नॉन आरसी क्वेश्चंस, पूरे टेस्ट में जितने भी वर्ड्स हैं विच आर अनफेमिलियर टू यू, वो आप आपकी रजिस्टर में जाएंगे, आपकी वोकैबुलरी रजिस्टर, और उसके मीनिंग देखिए। ओके, तीसरा स्टेप है एनालाइजिंग द रॉन्ग्स। ठीक है, नहीं तो आरसी एनालिसिस में आप शुरू इससे करते हैं और फिर यहीं खत्म हो जाता है, कोई पॉइंट ही नहीं है। दिस इज हाउ यू एनालाइज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। ठीक है, स्टेप 1, रिसर्च रीड अप ऑन ऑल कंटेंट दैट इज अनफेमिलियर। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द टफ वर्ड्स, गेट देयर मीनिंग्स, देन एनालाइज द रॉन्ग्स कि आपका रॉन्ग क्यों हुआ, एनालिसिस क्या बोल रहा है। एंड फाइनल स्टेप, कोई डाउट है फैकल्टी के साथ डाउट क्लियरिंग करा लीजिए। ओके, सो जो भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स, रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स टू बी प्रिसाइज, राइट। तो दिस इज हाउ यू एनालाइज a test. And please remember, before you go for the next mock, the previous mock should have been completely analyzed, otherwise you are wasting both the mocks. And you keep doing this consistently in your mocks. Remember, it's not going to be easy. It requires a lot of patience, a lot of hard work, a lot of smart work, a lot of intelligence, right? Keep doing this consistently. Your improvement won't be sudden.
You might belong to the instant generation, but here nothing is instant. You keep doing this for 2 to 3 mocks, 4 to 5 mocks. In the 6th mock, 7th mock, you'll realize that you have improved. And that is what we all want, ultimately, a higher percentile, a better score. Okay, so these are a few tips on improving scores in mocks. I hope you'll follow them very carefully and implement them when you actually prepare. Okay, this is Ram from Career Launcher Pune. Thank you very much. All the best.